پاکستان نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے حق میں حمایت کر دی۔ ایران کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اصولی موقف پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا جواز جارحیت پر پاکستان اور اس کے عوام نے مذمت کی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں ہاتھ تھامتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران کی سوچ ایک ہے۔ ایران سے $10 ارب کی تجارت کا ہدف جلد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم کا غزہ میں فوری سیز فائر پر زور، کہا ایران اور پاکستان نے فلسطینیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ غزہ میں اب تک اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ دنیا کو غزہ میں امن کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے پہلے دونوں رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا کہ اسرائیل خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ علاقائی امن اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ روابط برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرحدی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کی دستاویزات کا تبادلہ بھی ہوا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی ایوان صدر آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے خوش آمدید کہا۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق دونوں صدور کی ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے لیے اور تنازعات کو بڑھانے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم دہرایا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دونوں ملک خطے کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت نے مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف مسلسل حمایت پر ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے صدر نے اسرائیل ایران جنگ میں پاکستانی قیادت اور عوام کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ پاکستان نے کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے صدر پاکستان کے 2 روزہ دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ آسٹریلیا میں غزہ کی حمایت میں بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ سخت سردی اور بارش کے باوجود سڈنی اور میلبرن میں لاکھوں افراد کی شرکت۔ ہم سب فلسطینی ہیں۔ سڈنی ہاربر برج پر 3 لاکھ سے زائد افراد کے نعرے۔ احتجاجی مظاہرے میں آسٹریلوی سینیٹر مہرین فاروقی، سابق وزراء، وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج سمیت کئی کھلاڑی اور سیاستدان شریک ہوئے۔ مظاہرین کا غزہ میں انسانی امداد کی بحالی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کی نسل کشی اور جبری قحط پر اسرائیلی حکومت کے خلاف لندن، مانچسٹر، جرمنی، ڈنمارک اور مغربی کنارے میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی۔ پناہ گزین علاقوں، امدادی مراکز سمیت ریڈ کراس کی عمارت پر بھی بمباری۔ مزید 90 فلسطینی شہید۔ بھوک کی شدت سے بھی 6 فلسطینیوں کا انتقال۔ غذائی قلت سے شہداء کی تعداد 93 بچوں سمیت 175 ہو گئی۔ حماس نے اسرائیل کے جبری قحط سے متاثر یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ریڈ کراس سے غزہ میں یرغمالیوں کو خوراک پہنچانے کی درخواست۔ عرب اور مغربی ممالک کی غزہ کے لیے فضا سے امداد۔ اردن، UAE، جرمنی، فرانس اور بیلجیم کے طیاروں نے 61 ٹن امداد غزہ میں گرائی۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا اور میں پاکستان میں ہی رہوں گا۔ اگر کوئی ڈیل انہوں نے کرنی ہوتی تو اب تک کر بھی لی ہوتی۔ تو یہ جو اس طرح کے جو مفروضے بنائے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نئے نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی تحریک کو نقصان دینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہ کوئی خواہش ظاہر کی ہے، نہ کبھی یہ بات کی ہے، نہ کبھی سوچا ہے آج تک کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے کہیں پر بھی جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے دعووں کی تردید کی ہے کہ عمران خان بیرون ملک جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ روزنامہ جنگ پشاور کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ارشد عزیز ملک سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی ڈیل کرنا ہوتی تو اب تک کر لی ہوتی۔ ایک اور بیان میں 5 اگست کو حیات آباد ٹول پلازا سے خود ریلی کی قیادت کا اعلان۔
रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। 5 अगस्त से पूरे मुल्क में प्रोग्राम करेंगे। इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कानूनी तौर पर बानी PTI की तमाम केसेस में जमानत होनी चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस गलत बुनियाद पर बना था। इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी का उस वक्त के वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था। किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। बानी PTI के बेटे वालिद से मिलने आ रहे हैं। बेटों से मुलाकात में बानी PTI जो हिदायत देंगे वो फैसला करेंगे वो होगा। जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, उन्हीं से बात हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समाहनी से 16 MPO के तहत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समाहनी में रैली से खिताब करके वापस आ रहे थे, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म 5 अगस्त को बानी PTI की कॉल पर एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ थे। साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। दूसरे T20 में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। फातेह टीम के जेसन होल्डर की ऑल राउंडर परफॉर्मेंस, 4 विकेटें हासिल की, विनिंग शॉट समेत 16 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स भी खेली। मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 133 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने 4 छक्कों और 1 चौके की मदद से 40 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 38 रन की इनिंग्स खेली। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि 2 तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती शोबों में 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देना तरजीह है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को दाव पर लगा रही है। अमन के लिए मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि दोनों मुल्क तिजारत की राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। 2 तरफा तिजारत के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। पाक ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बिजनेस फोरम जैसे प्लेटफॉर्म्स 2 तरफा तिजारत के फ़रोग़ में अहम हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हिमायत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान के सदर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। बलूचिस्तान की काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त काकड़ और वज़ीर ज़राअत अली हसन ज़हरी के महकमे तब्दील किए जाएंगे। सादिक इमरानी, ज़हूर बुलेदी और असलम कुर्दगिलो से वज़ारतें वापस लिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला के 5 मशीरान को भी तब्दील करने का फैसला। 2 मशीरान के महकमे तब्दील किए जाने का इम्कान। ज़र्क मंदोखेल को काबीना में शामिल करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक मुख्तलिफ सूबाई वज़रा के खिलाफ नैब, एंटी करप्शन और दीगर इदारे तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है बलोचिस्तान काबीना में कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरबंसपुरा, जेल रोड, गढ़ी शाहू और डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश। पुलिस शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम शहदा मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। इस्लामाबाद में यौम शहदा पुलिस की मुनासबत से पुलिस लाइन्स यादगार शहदा पर शमे रोशन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदा पुलिस जुर्रत और बहादुरी और मुल्क और कौम से वफा के पेकर हैं। लाहौर मॉल रोड पर भी तकरीब का इनकाद। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने यादगार शहदा पर फूल रखे। फातिहा खानी की शमें भी रोशन की गईं। DIG फैसल कामरान ने कहा कि लाहौर पुलिस के 342 अफसर और जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हो चुके हैं। रावलपिंडी में भी यौम शहदा पर शमें रोशन करके खिराज अकीदत पेश किया गया। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि रावलपिंडी पुलिस के 122 जवानों ने फ़र्ज की राह में जानों का नजराना पेश किया। शहदा हमारा फ़ख्र हैं, कुर्बानियों को याद रखा जाएगा।
रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के 476 वाक़यात हुए, जिनमें 70 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2 एडिशनल IG समेत 2330 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जिरगे के हुक्म पर गला दबाकर कत्ल की गई खातून की लाश कब्रिस्तान लाए जाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है खातून की लाश को लोडर रिक्शे में रखकर सुर्ख रंग के तरपाल से ढांप कर कब्रिस्तान लाया गया। जिरगे के हुक्म पर 19 साला शादीशुदा खातून के कत्ल का वाक़या 16 और 17 जुलाई की शब पेश आया था। ये वीडियो 17 जुलाई की सुबह की है। वीडियो में नजर आने वाले तमाम अफराद पुलिस की हिरासत में हैं। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया। TCP के मुताबिक 1 लाख मेट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में सरकारी रेट पर चीनी दस्तियाब नहीं। लाहौर की दुकानों से चीनी गायब। दुकानदारों ने गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ा दी। कोयटा में 7 रुपये फ़ी किलो कमी के बाद चीनी 178 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। कल तक चीनी 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही थी। ज़िले इंतज़ामिया ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों के असासों में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सदर की मुलाकात। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान चीन के इक़्तिसादी और इस्लाहाती कामयाबियों से सीखने का ख़्वाहां है। देरपा और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन के साइंटिफिक प्लानिंग मशअल राह है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान का हदफ पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का है। पंजाब भर में सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हरियाणा ड्रेन की 10 अगस्त तक सफाई की डेडलाइन मुकर्रर। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। हुकूमत का वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए सनतों को बिला सूद कर्जे देने का भी फैसला। मरियम औरंगजेब की 10 अगस्त से फैसला कुन कार्रवाइयों का आगाज़ करने की हिदायत। कराची में शाह फैसल कॉलोनी के पुल पर ट्रैफिक हादसा, खातून जाँ बहक, बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक खातून और बच्ची चिंची रिक्शे से गिरी और पीछे से आने वाली बस के नीचे आ गईं। कराची दो दरिया में बाप की अपने 2 बच्चों के साथ समंदर में डूबने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में बाप को बच्चों समेत समंदर में डूबते और शहरियों को वीडियो बनाते देखा जा सकता है। 4 रोज़ कबल एक शख्स ने अपनी कमसिन बेटी और बेटे के साथ समंदर में छलांग लगा दी थी। लाशें समंदर से निकाल ली गई थी। रावलपिंडी के बोस्तान खान रोड पर सीवरेज लाइन में गैस भर जाने से धमाका, बच्ची जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। सीवरेज लाइन में गैस धमाके की वीडियो भी सामने आ गई। गैस धमाका मुमकिना तौर पर फुटपाथ के नीचे बनी सीवरेज लाइन में हुआ है। फैसलाबाद के चक 564 में खाने में ताखीर पर छोटे भाई ने फायरिंग करके बड़ी बहन को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। दरियाए सिंध में कालाबाग, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA की मौजूदगी में पाकिस्तान से गज़ा के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। NDMA के मुताबिक 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17वीं खेप बज़रिया खुसूसी परवाज़ गज़ा के लिए भेजी गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, खुश्क दूध, बिस्किट और अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान से अब तक मजमूई तौर पर 1715 टन इमदादी सामान गज़ा भेजा जा चुका है। मज़ीद 100 टन इमदाद चंद दिनों में रवाना की जाएगी।
اسرائیل کے 600 سے زائد سابق سیکیورٹی عہدیداروں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی عہدیداروں نے خط میں صدر ٹرمپ سے غزہ جنگ ختم کروانے کے لیے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن کے ساحل پر خراب موسم کے باعث کشتی ڈوب گئی۔ واقعہ یمن کے جنوبی صوبے ابیان کے ضلع اہور کے قریب بحیرہ عرب میں پیش آیا۔ کم از کم 54 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کا شکار کشتی میں 150 افراد سوار تھے۔ 10 افراد کو بچا لیا گیا، باقی کی تلاش جاری۔ مدینہ منورہ ایک بار پھر صحت مند شہر کے درجے پر فائز۔ عالمی ادارے صحت نے صحت مند شہر کی سند دے دی۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق WHO کے 80 معیارات پر پورا اترنے پر مدینہ منورہ کو صحت مند شہر کا درجہ ملا ہے۔ مدینہ ریجن کے گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان نے وزیر صحت فہد الجلاجل سے عالمی ادارے صحت کی تصدیق کی سند وصول کی۔ مدینہ منورہ کو یہ اعزاز پہلی بار 2019 میں ملا تھا۔ طائف، تبوک، الدریاہ سمیت دیگر 14 سعودی شہر بھی صحت مند شہروں میں شامل۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام اور لاہور کیلنڈرز کے تحت شاہینوں کے شہر سرگودھا میں 2 روزہ ٹرائلز کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد یونیورسٹی کرکٹ گراؤنڈ پہنچ گئی۔ آج خواتین کے ٹرائلز ہوں گے۔ آئرلینڈ کے خلاف 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم آئرلینڈ پہنچ گئی۔ 15 رکنی اسکواڈ کی قیادت فاسٹ بالر فاطمہ ثنا کر رہی ہیں۔ پاکستان ٹیم آج سے پریکٹس شروع کرے گی۔